Hello students, welcome to the third lecture of mathematical methods. In our previous lecture we have discussed what are scalars, what are vector, representation of vector, equal vector, null vector, resultant vector, addition of vector, triangle law, subtraction of vector, vector addition is commutative, vector addition is associative, and we discussed some MCQs based on this concept. Today we are going to discuss a very important point in your topic, that is law of parallelogram of vectors. What is meaning of law of parallelogram? Look at this point. I have two vectors, say this is vector P and this is vector Q. क्या हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और जब हम इस वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? वी यूज व्हाट? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. आपण कुठला लॉ वापरतो? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन यू ऐड दिस वेक्टर p एंड वेक्टर q. अब एक नया लॉ सीखेंगे, ध्यान से देखिए. ये लिया मैंने पॉइंट O. ओके, इस O से मैं OP, आई ड्रॉ अ सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP which represents vector p. From point O, I will draw another vector OQ representing in magnitude and direction vector Q. म्हणजे जशी Q ची डायरेक्शन आहे तशी C डायरेक्शन घ्यायची, जशी P ची डायरेक्शन आहे तशी C डायरेक्शन घ्यायची. आता हे दोन वेक्टर्स आपण तयार केल्यानंतर you complete the parallelogram and then draw the diagonal from O. Then this OR represents the resultant vector. Then how do you state this law? If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of a parallelogram drawn from their common point. If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by what? A diagonal of a parallelogram. अब यहाँ पर अगर गौर से देखते हो कि क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ सेम है क्या, तो बिल्कुल सेम ही है. थोड़ा सा इसको हमने मॉडिफाई किया है, ध्यान से देखो. थोड़ा सा मैं थोड़ा परफेक्ट पैरेललोग्राम बनाता हूँ. Now if you look at this parallelogram OPRQ, OQ and PR, they are equal and parallel. So what does vector PR represents? Vector PR will also represent what? Vector Q. तो अब इस ट्राइंगल में देखो आप OPQ, OP plus PR is equal to what? OR. What is OP? Vector P. What is PR? Vector Q. Vector P plus vector Q क्या आया? Vector R. By what? By triangle law. That means parallelogram law is just a little bit modification of what? A triangle law. Then why we use parallelogram law more frequently while solving the problems in physics? When you are using a triangle law, आप एक वेक्टर खत्म होने के बाद सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करते हो, और जब पैरेललोग्राम है तो एक ही पॉइंट से आप दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हो. तो फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है, हम नॉर्मली फोर्सेस से डील करते हैं, नॉर्मली वेक्टर्स में. एंड नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी एक्टिंग एट अ गिवन पॉइंट. से देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ वन सिंगल पॉइंट. एट दैट टाइम पैरेललोग्राम लॉ बिकम्स मोर हैंडी than what a triangle law. Otherwise the meaning still remains or same. तो हम एक बार रिवाइज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है. ध्यान से देखो, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर A. मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर B. इन दोनों को मुझे ऐड करना है. क्या करना है फिर? मुझे एक पॉइंट लेना है O. O से आई विल रिप्रेजेंट वेक्टर A.
ओ से ही मुझे सेकेंड वेक्टर रिप्रेजेंट करना है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, नाउ यू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। Complete the parallelogram OACB. Draw this diagonal OC. What does diagonal OC represents? The resultant vector. What does diagonal OC represents? The resultant vector. So how will you state law of parallelogram? If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by a diagonal of a parallelogram drawn from their common point. आ रही बात समझ में? Take a note of this, open your textbook and 2 मार्क के लिए मैं सवाल पूछ सकता हूँ टेस्ट में। State the law of parallelogram and give one illustration. Then in illustration you have to show these two vectors और फिर ये ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। Okay, next part that which we are going to study is parallelogram law analytically. Analytically यानी mathematically हम कुछ expressions derive करने वाले, फिर उसके बाद हम कुछ problems लेंगे। मान लो मेरे पास दो vectors हैं, एक है vector P which I am representing by directed line segment OA, एक है vector Q which I am representing by a directed line segment OB. The angle between these two vectors is theta. The angle between these two vectors is theta. Okay. Now what I will do, I want to find the resultant. तो resultant find out करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये आपका parallelogram मैं क्या करूंगा, complete करूंगा। ठीक है, I'll complete this parallelogram OACP. Then what is the resultant in this diagram? Resultant क्या है बोलो मुझे? Vector OC represents what? Resultant. बराबर है? Vector OC represents what? Resultant vector. What is this vector R equal to? This vector R is equal to what? Vector P plus vector P. चलो अब हम एक कोई expression find out करते हैं. We will express R in terms of P and Q. Okay. यहां से C से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऑन लाइन OA and it meets in the extended part of OA at point D. ठीक है, अगर एंगल BOA थीटा है तो एंगल CAD कितना है? ये भी तो थीटा होगा। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो OA है, OA लेंथ OA is what? It is magnitude of vector P, which I will write it as what? OA is equal to what? P. जब मैं सिर्फ P लिखता हूं, वेक्टर P नहीं, मैं सिर्फ P लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या है कि it represents what? The magnitude, only magnitude. Okay, चलो मुझे बोलो अभी what is vector OB, what is this length OB equal to? It is equal to magnitude of vector Q, यानी OB is equal to what? Q. ठीक है, what is OB is equal to Q. Okay, now quadrilateral OACB is a parallelogram. बराबर है? Therefore can I write AC is equal to OB? AC is equal to OB. Why? Opposite sides of parallelogram are congruent. तो मेरा AC will be also equal to what? Q. Okay, and in similar manner, what is OC is equal to R. जब मैं बार नहीं लिखता हूं इसके ऊपर, इसका मीनिंग सिर्फ क्या है कि हम सिर्फ डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में? ये आ रहा है क्या फ्रेम में? OC is equal to R. Okay, OC is equal to R. Now come back to this point. In this triangle, in triangle OCD,
चलो पाइथागोरस थ्योरम बोलो मुझे क्या है पाइथागोरस थ्योरम? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. Am I right? What is OC square is equal to OD square plus CD square. लेकिन OC is equal to what? वो बाद में लिखते हैं. चलो इसको पहला हम निपट लेते हैं. What is OD is equal to OA plus AD square plus CD square. Okay? What is OC square is equal to OA square plus AD square, OA plus AD whole square plus CD square. इस ब्रैकेट को आप ओपन करो, इसको ओपन करो. चलो बोलो मुझे क्या आएगा ये? OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. समजते का काय केलंय ते मी? ओके, आता मला सांगा, हुशार आहात तुम्ही. व्हाट इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर? बोलो मुझे, आवाज सुनाई दे रही है. व्हाट इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर? इट इज व्हाट? AC स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2OA AD. ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात. ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CDA, can you tell me what is cos theta is equal to? Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. तो ये क्या बना? AD upon AC. So what is AD is equal to AC cos theta. What is AD is equal to AC cos theta. तो चलो अब यहां पर देखो, लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं. 2OA AD के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? AC cos theta. वेरी गुड. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज OC इज इक्वल टू R. व्हाट इज OA P. व्हाट इज AC क्या है? AC इज इक्वल टू व्हाट? Q. OA क्या है? P. AC क्या है? Q. ये क्या बना? cos थीटा. और ये रहा आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि पूरे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? इट इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मींस इफ दे गिव मी, अगर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया कि vector of two vectors of 5 Newton and 3 Newton each are inclined at an angle 60 degree, then find magnitude of resultant vector. यानी p की वैल्यू 5 लेनी है, q की वैल्यू 3 लेनी है, थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? 60 लेनी है. तो आपको वो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स में इंक्लिनेशन देंगे और आपको क्या पूछेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये प्लीज आप पूरा आपके टेक्स्ट नोटबुक में नोट डाउन करो. ये आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये 11th और 12th 2 साल पूरे लगने वाला ये फॉर्मूला. R इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. Please take a note of this. बाद में मैं सिर्फ ये डायग्राम रखने वाला हूं, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर p. यानी मुझे ये अल्फा भी फाइंड आउट करना है. तो मैं ये सब रब करने वाला हूं, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. In the last part, what we have seen, that the magnitude of resultant vector is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay. अब यहां पर देखिए, मुझे ये एंगल अल्फा भी फाइंड आउट करना है. तो हमने ये AD के बारे में लिखा था. क्या लिखा था? AD is equal to AC cos theta.
तो अब यहाँ पर एक इस ट्राइंगल में देखते हैं, पहला ये ट्राइंगल में कंसिडर कर रहा हूं ADC। व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, डायग्राम देखकर बोलो मुझे क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC, am I right? Opposite side upon hypotenuse. So what is CD is equal to AC sin theta, ठीक है। और इसके वापस से मैं लिखता हूं व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AC। So what is AD is equal to, AD is equal to AC cos theta। सही जा रहा हूं मैं? ओके। अब ये दोनों टर्म्स मुझे लगेंगे क्योंकि मुझे ये एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। अब देखो इन ट्राइंगल OCD, इन ट्राइंगल OCD what is tan alpha is equal to, tan alpha is what, opposite side upon adjacent side, CD upon OD। But what is OD is equal to, it is equal to OA plus AD, and this is the important expression। what is CD? CD क्या है? AC sin theta। लेकिन AC क्या है? This is Q, no? So what is AC is equal to Q, so what is CD is equal to Q sin theta। okay, what is AC is equal to Q cos theta। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट CD को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, Q sin थीटा। डायग्राम देखकर बोलो मुझे व्हाट इज OA इज इक्वल टू व्हाट, P, और AD कितना है अपना, AD Q cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये एक है और ये एक है। दैट इज द टू इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस दैट व्हिच वी हैव डन। अब सिग्निफिकेंस देखो कैसा है, आपको ये याद रखना है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, then the magnitude of the resultant vector is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and the resultant vector makes an angle alpha with vector P such that tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta। आपका स्टेटमेंट आपको क्या याद रहना चाहिए बोलो मुझे, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, then the magnitude of the resultant vector is given by r is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and the resultant vector makes an angle alpha with vector P such that tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta। हे डोकेट ठेवायचे, जो लास्ट में स्टेटमेंट आपको बोला मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स P and Q are inclined at an angle theta, then the resultant vector has a magnitude r is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and resultant makes an angle alpha with vector P such that tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta। Please take a note of this। Yes, look at this question. Two vectors have magnitude 6 and 8 units respectively. Find magnitude of resultant vector if the angle between them is 60 degree, 90 degree and 120 degree। ओके, एंगल्स उन्होंने वेरी किए है। तो यहां पर देखो हम पहला P को लेते हैं 6 यूनिट्स, Q को लेते हैं 8 यूनिट्स। ओके, मेरा फर्स्ट है और इसमें थीटा कितना दिया उन्होंने 60 डिग्री। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट P square plus Q square plus 2PQ cos theta। So it is equal to under root, चलो बोलो मुझे 6 square plus 8 square plus 2 times
6 into 8 into cos 60. तो r is equal to under root 6 का स्क्वायर 36 plus 64 plus 2 into 6 12 12 8 is 96 and what is value of cos 60 half. Okay, under root what is 36 plus 64 100 plus 96 upon 2 48. तो ये क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ 148. अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करो, ऐसे ही छोड़ देना है आप ऐसे ही छोड़ दो. गॉट इट? कैन यू डू यू वांट टू सिंप्लीफाई इट? You simplify it. If you just want to keep it as square root of 148, you can keep it as square root of 148. Okay. अब सेकेंड प्रॉब्लम. P की वैल्यू कितनी है 6, Q की वैल्यू कितनी है 8 और थीटा कितना दिया उन्होंने 90 डिग्री. ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट p square plus q square plus 2pq cos theta. It is equal to under root 6 square plus 8 square plus 2 times 6 into 8 into cos 90. अब ये cos 90 की वैल्यू कितनी है? cos 90 की वैल्यू कितनी है 0. तो ये 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0. तो ये क्या बना सिर्फ 36 plus 64. 36 plus 64 कितना हो गया 100. 100 का स्क्वायर रूट कितना है 10 यूनिट्स. सो फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 48, सेकेंड केस में मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 10. अब थर्ड केस में देखते हैं हम. P इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 8 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. चलो R का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. अब ये वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा. आपका ट्रिग्नोमेट्री आपने कितना सीखा है वो मुझे देखना पड़ेगा. चलो व्हाट इज 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 plus 64 100 प्लस 2 into 6 12 12 8 is 96. क्या आप मुझे cos 120 की वैल्यू बोल सकते हो? लुक एट दिस. cos 120 is cos 90 plus 30. 90 यानी चेंज, तो ये क्या बना sin 30. 90 plus 30, 90 plus सेकेंड क्वाड्रेंट मध्ये cos काय असतो निगेटिव्ह. Okay, what is sin 30? Half. So what is cos 120? Minus half. तो ये क्या बना 100. 96 into minus half minus 48. तो ये क्या बना अंडर रूट 52. आप अगर अंडर रूट 52 को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो करो. कैसे करोगे आप? अंडर रूट 4 into 13 यानी 2 रूट 30 या आप उसको ऐसा ही छोड़ दो. तो आपको इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि अगर आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए जाते हैं और द एंगल बिटवीन देम इज गिवन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम. Let us discuss the next question. Very interesting. When two vectors acting through the point are in ratio, magnitude का ratio दिया है 3:5 and the angle between them is 60 degree. The magnitude of resultant is 35. Find the magnitudes of two vectors. Okay. हम एकदम सिंपल करेंगे. यहाँ पर दो वेक्टर्स लेंगे, एक लेंगे P और एक लेंगे Q. P और Q में रेशियो कितना है 3:5. तो इसको पकड़ेंगे 3x, इसको पकड़ेंगे 5x और उनमें एंगल कितना दिया उन्होंने 60 डिग्री. रिजल्टेंट कितना दिया उन्होंने 35. क्या आप मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल सकते हो? मैं सुन रहा हूं, बोलो आप. R इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. देयरफॉर R की वैल्यू कितनी है 35. अंडर रूट p स्क्वायर कितना है 3x का स्क्वायर
क्यू कितना 5x का स्क्वायर प्लस 2 3x 5x cos 60। ओके, चलो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। 35 का स्क्वायर कितना 1225, 3x का स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर, 5x स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर, 5 15 2 30x cos 60 पे की वैल्यू कितनी है हाफ। ओके, तो ये कितना बना 1225 इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर कितना हो गया 34x स्क्वायर प्लस 2 3 6 5 30 x into x स्क्वायर, तो ये कितना प्लस 15x स्क्वायर। चलो बोलो मुझे 34 प्लस 15 कितना हो गया 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। तो x स्क्वायर कितना हुआ 1225 अपॉन 49, तो x कितना 1225 का स्क्वायर रूट 35, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5।